Hello student. Now the last topic of haloalkanes and haloarenes. This is the topic of haloform reaction. This is very important topic. Lots of questions are coming based on this topic. Haloform reaction. And what is a haloform? Haloform means this is chloroform, bromoform and iodoform. Chloroform means CHCl3. Bromoform there is a CHBr3 and CHI3. So chloroform, this is colorless liquid with pleasant smell. Yeah, pleasant smell you know. Bromoform, colorless liquid with sweet smell. This is the properties of chloroform, bromoform and iodoform. And now the iodoform is very important. Pale yellow crystalline solid. Pale yellow crystalline solid, yellow PPT with hospital like smell. And how to consider ki this is iodoform? Hospital like smell or antiseptic smell is a iodoform. Okay, and sweet smell is a bromoform and pleasant smell is a chloroform. Yeah, chloroform को किस लिए use करती you know very well. Now, and how to this is haloform reaction. Now the reaction of haloform. Now suppose you have aldehyde and there is a halogen group. X is a halogen. Suppose there is a Cl, it means chloroform. Suppose is a Br, it means bromoform. Suppose is a I, it means iodoform. So aldehyde and ketone show haloform reaction. So now there is a 3x2. Just you learn 3x2 and 4NaOH. 3x2 and 4NaOH. This is aldehyde and ketone. And chloroform. And now there is a 2 carbon. The 1 carbon is chloroform. And the second is sodium formate. This is called sodium formate and 3NaX. Suppose Cl is there, so 3NaCl. Suppose Br is there, so 3NaBr and 3H2O. And now ketone is also show haloform reaction. So there is 3x2 and 4NaOH. This is a common stoichiometric coefficient of halogen and sodium hydroxide. Now there is a 3 carbon. It means there is a haloform. Now there is a 3 carbon. 1 carbon is there. It means there is a sodium formate. And 3 carbon to 1 carbon is chloroform or iodoform or haloform, and 2 other carbons show there is a sodium formate, common reaction. There is a sodium formate, and suppose 1 carbon also increase, it means there is a sodium. This is sodium acetate. There is sodium propionate. Okay, the sodium acetate, 3NaX and 3H2O. So now this is a property. How to check if this compound show haloform reaction and that compound show not haloform reaction. Okay, it is a property of aldehyde and ketones which contain, जहां पर आपको ये दिख जाए C डबल बॉन्ड हो CH3 ग्रुप और अल्फा मिथाइल ग्रुप के सामने वाला, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप. तो सेकंड ग्रुप के सामने वाला कार्बन दैट इज कॉल्ड अल्फा मिथाइल. मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप दिखना चाहिए. CH3 नॉट CH2. CH3 group is very important. Just check CH3. Yeah. तो now aldehyde देखो, this is a functional group. तो second वाले कार्बन क्या है? CH3. But this compound does not show because functional group के सामने वाला कार्बन CH2. This is also alpha methyl. Alpha, but not contains CH3 group. It means this compound does not show haloform reaction. Ketone में देखो, both side alpha methyl group. This is a functional group. Both side alpha methyl group, but this compound does not show. Because there is a CH2. This is a functional group. Then the next carbon is alpha methyl. This is not alpha methyl because not CH3 group is there. Okay. In this case, this compound show because CH3 group is there. This compound does not show, and does not show because there is a CH2 CH group, and this compound show because both side of CH3 group, and this compound also show because this side CH2 but this side is a alpha methyl group. This compound show because CH3 group. This compound does not show because no CH3 group is there. So now acetaldehyde plus 3I2. देखो 3I and 4Na is a common. 4 and 3 is a common. 1 coefficient of aldehyde or ketone and 3 molecules of I2 and 4 molecules of NaOH. This is called iodoform and sodium formate and sodium iodide and 3H2O. This is a common reaction. Just you learned that. Same as this. This is also show because alpha methyl. So these compounds show haloform reaction, chloroform, bromoform or iodoform. Now what is the iodoform test? Certain aldehyde and ketones alpha methyl group on treatment with I2NaOH gives
येलो पीपीटी विद एंटीसेप्टिक स्मेल, मतलब अगर आप जब प्रैक्टिकल करोगे इसके साथ और इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो येलो पीपीटी फॉर्म होगा और उसमें एंटीसेप्टिक स्मेल आएगी, दैट इज कॉल्ड आइडोफॉर्म टेस्ट। नाउ गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, दिस इज ऑल्सो बोर्ड एग्जाम्पल, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। तो फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, तो यू नो द फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मूला एंड एसिटल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड देयर इज नो CH3 group, no there is a CH3 group, it means this compound show iodoform test, but this compound does not show iodoform. Acetone and benzophenone, acetone have alpha methyl but there is no alpha methyl group, so this compound show haloform, but this compound does not show haloform reaction. And acetaldehyde and propanaldehyde, acetaldehyde have CH3, yeah, but there is no CH3 group, functional group के नजदीक वाला कार्बन there is no CH3 group. तो now the mechanism is very important. देखो, this is a aldehyde group, functional group के नजदीक अल्फा मिथाइल कार्बन is a acidic hydrogen. Acidic hydrogen यानी ये अपना H plus रिप्लेस करना चाहेगा. Now the first NaOH attack on this, तो OH माइनस आकर अटैक किया इस पे, तो यहां से एक H को रिप्लेस किया, क्या निकाल दिया H2O। तो जैसे इसने अपना एक हाइड्रोजन इससे एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर क्या आ गया, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देके इसको निकलेगा तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया तो डबल बॉन्ड, तो जैसे डबल बॉन्ड आएगा तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट कर देगा तो O-। अब देखो यहाँ पे आया I2 रिएक्शन करने, देखो 3I2 and 4NaOH सब मैं बताऊंगा। अब देखो ये I2 मतलब इसमें क्या हो रहा है, हेट्रोलिटिक फ्यूजन हो रहा है, एक प्लस और एक माइनस, यानी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के कारण। एक्चुअली इसमें होमोलिटिक फ्यूजन होता है बिकॉज बोथ साइड आयोडीन इज देयर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर सेम, बट देयर इज अ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी शो करने के लिए इसको हम होमोलिटिक फ्यूजन कराते हैं। तो यहां से I प्लस आया, अब I प्लस कहां अटैक करेगा, देखो ये जैसे ही अपना ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये जैसे ही इधर आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव, तो प्लस वाला कहां पे अटैक करेगा, यहाँ पर। और यहां से जो Na निकला था वो इस I माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, NaI। क्लियर, सॉल्यूशन के अंदर ही तो है। अब नेक्स्ट फिर NaOH आया, OH माइनस आकर फिर इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि बिकॉज दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहां से फिर से एक वाटर निकाला तो इसके ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज, जैसे देखो वही प्रोसेस है बार बार, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ा, ये ऊपर गया, फिर ये ऐसे ही हुआ, देखो O माइनस हुआ इसके ऊपर और CHI आ गया यहाँ पर। क्लियर, एंड द नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर वही चीज है, I2 फिर आएगा तो I2 कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर। तो यहाँ से देखो CHI2 हुआ, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ा, डबल बॉन्ड, और देखो यहाँ पे आया तो यहाँ पे आया नेगेटिव, तो I प्लस वाला के यहाँ अटैक करेगा और पीछे जो एक Na निकला था फिर से NaI बना देगा। सेम एज फिर से देखो यहाँ पे आया एक हाइड्रोजन एसिडिक बचा हुआ है, फिर H2O निकाला, Na प्लस अभी बचा हुआ है। अब ये क्या करेगा, जैसे इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे बनाएगा CI2, ठीक है, यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये अपना हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के जाएगा, देखो नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव इधर आया, फिर ये ऊपर गया, देखो सेम वही है। अब फिर I2 अटैक करेगा, अटैक करिए कहाँ पे आया, देखो I2 ने अटैक किया तो I यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे I2 ने अटैक किया तो देखो CI3 हो गया, और जो Na प्लस यहाँ से बचा था वो I के साथ रिएक्ट करके NaI बना दिया। सेम एज अब देखो क्या होगा, अब NaOH कितने मॉलिक्यूल्स है, 4, 3 यूज हो गए, ये लास्ट है। अब NaOH कहाँ पे अटैक करेगा, अब यहाँ पर तो H बचा नहीं है तो इस वाले पे करेगा, क्योंकि देखो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन इज लेस, तो कार्बन इज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन इज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो ये इस पे अटैक किया तो कार्बन की वैलेंसी में प्रॉब्लम हुई, तो ये ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, देखो नेगेटिव, और ये OH आकर यहाँ अटैक किया। क्लियर, अब CI3 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये देखो ये अपना इसका इलेक्ट्रॉन लेके निकला, माइनस चार्ज। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी में प्रॉब्लम, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो क्या बना दिया COOH, देख लो COOH। क्लियर 100%। अब देखो CI3 क्या करेगा, CI3 यहां से जो HCOOH है, यानी इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो किसमें ब्रेक होगा, HCOO माइनस और H प्लस, तो ये H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकला, तो ये H प्लस आकर किस पे अटैक किया, CI पे, C वाले पे, तो क्या बन गया CHI3। और ये जो Na प्लस बचा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ OH का ही यूज हुआ है, ये Na प्लस
इसकी जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे HCOO माइनस है, Na प्लस आकर यहाँ अटैक किया, देखो HCOO Na बन गया। तो CH2 बना, HCOO Na बनता था रिएक्शन में। और कितने मॉलिक्यूल्स NaOH के यूज हो रहे हैं देखो, काउंट करो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, देखो 4 और 3I2, देखो काउंट करते हैं, 1 NaOH, 2 NaOH, ठीक है, 3 NaOH और 4 NaOH। I2 कितने यूज हो रहे हैं देखो, 3I2 है ना, तो देयर इज अ 1I2 या 1I2 and the second is 2I2 and there is a third I2. Clear? This is a complete mechanism of iodoform और हेलोफॉर्म। तो अब रेट देखो चेक करते हैं, रेट तो देखो देयर इज अ कीटोनिक ग्रुप, कीटोन कंपाउंड। अब क्लोरीन के साथ NaOH के कराओगे तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन के साथ कराओगे तो ब्रोमोफॉर्म और आयोडीन के साथ कराओगे तो आयोडोफॉर्म। देखो यहाँ पे रेट तीनों का इक्वल है। अगर पूछेगा इनके रेट में क्या डिफरेंस है क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म में, तो देखो एक चीज यहाँ ध्यान दो, मैकेनिज्म शो करता है एक्चुअली कि इसका रेट क्या होगा। देखो आप यहाँ पे कोई भी कंपाउंड ले रहे हो, पहले आप किसके साथ कराओगे, NaOH के साथ ही कराओगे, चाहे क्लोरोफॉर्म हो, चाहे ब्रोमोफॉर्म हो, चाहे आयोडोफॉर्म है, बिकॉज NaOH इज अ कॉमन। तो देखो इसका RDS स्टेप हमेशा यही बनेगा तीनों स्टेप के लिए, चाहे क्लोरोफॉर्म हो, चाहे ब्रोमोफॉर्म हो, चाहे आयोडोफॉर्म है। और RDS स्टेप ही डिसाइड करता है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, जो भी है, 2 हो रहे हैं, सॉरी 2 हो रहे हैं, OH भी आके अटैक कर रहे हैं ना। तो देखो तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा। तो देखो यहां पर इसका RDS स्टेप यही बनेगा तीनों हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए, चाहे वो क्लोरोफॉर्म हो, चाहे ब्रोमोफॉर्म हो, चाहे आयोडोफॉर्म हो। तो देखो ये तो कॉमन रिएक्शन है, तो इसके रेट में क्या फर्क पड़ेगा, रेट डिसाइड किससे होता है, RDS स्टेप से। देखो तो इन तीनों का रेट क्या होगा, कॉमन। क्लियर? अब ये तो था हेलोफॉर्म। अब सम अदर रिएजेंट ऑल्सो शो हेलोफॉर्म रिएक्शन अदर देन X2 प्लस NaOH। अब किसी रिएक्शन में आपको NaOX या X मतलब अगर यहाँ Cl होगा तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, Br होगा तो ब्रोमोफॉर्म, I होगा तो आयोडोफॉर्म। हाउ टू चेक, देखो एल्डिहाइड है, इस पे NaOH का रिएक्शन हो रहा है तो आयोडोफॉर्म बना दे रहा है, और HCOO। देखो ये बनता कैसे, I2 और NaOH का ही रिएक्शन कराते थे अभी तक, इसके रिएक्शन से देखो NaOI बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है, NaIH2O। तो वही चीज है कॉमन, NaOI NaIH2O भी बनता था। तो NaOI यूज कर रहे हो अगर आप तो बनेगा आयोडोफॉर्म, NaOCl होगा तो क्लोरोफॉर्म। क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो यूज फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखो ब्लीचिंग पाउडर बनाते कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन, केमिकल नेम इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड द कॉमन नेम इज ब्लीचिंग पाउडर। तो देखो CaCl2 के साथ भी करा रहे हैं तो क्लोरोफॉर्म बन रहा है, क्लोरोफॉर्म, एंड दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसिटेट। अब देखो यहां पर एक रिएक्शन है, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो देखो ये बन रहा है क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन के साथ है तो क्लोरोफॉर्म, अगर Br2 होगा तो ब्रोमोफॉर्म। अब देखो इसका अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो देखो यहां से निकलेगा CaCO3 और फिर से कीटोन बन जाएगा। तो कीटोन से कीटोन बनाने की प्रोसेस है ये। अब नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट, मैनी अल्कोहल ऑल्सो गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन प्लस आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो देखो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, ये क्या है हमारा इथाइल अल्कोहल, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। ये जब NaOI के साथ रिएक्शन कराएगा, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइज कराएगा तो ये क्या बना देगा, H2O बाहर निकालेगा। तो देखो जैसे H2O बाहर निकाला, ऑक्सीजन आकर ऐड हुआ तो क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब देखो एल्डिहाइड है, इसमें अल्फा मिथाइल है, तो अल्फा मिथाइल है तो डेफिनेटली आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब मेथेनॉल होगा तो क्या बनाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, तो मेथेनॉल डज नॉट शो हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब देखो ये भी रिएक्शन होगा तो ये भी कंपाउंड होगा तो नहीं देगा। इससे क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, अल्फा मिथाइल नहीं है, मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो दिस कंपाउंड ओनली इथाइल अल्कोहल शो हेलोफॉर्म रिएक्शन, बट मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल डज नॉट शो हेलोफॉर्म रिएक्शन। दिस इज अ 1 डिग्री अल्कोहल। नाउ 2 डिग्री, देखो 2 डिग्री में फिर से इसका कराएंगे तो ऑक्सीडाइज होकर ये क्या बना देगा, कीटोन, तो ऑल्सो अल्फा मिथाइल ग्रुप। तो सेकेंडरी अल्कोहल में ये वाला भी ग्रुप क्या देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये वाला भी देखो देगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा मिथाइल है तो ये भी देगा हेलोफॉर्म रिएक्शन। बट इन दिस केस यहाँ पे देखो अगर निकलेगा तो यहाँ पे बन रहा है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर अल्फा मिथाइल नहीं है, तो इट मीन्स देयर इज अ नो रिएक्शन। क्लियर? क्लियर 100%? ओके। तो गिव द क्वेश्चन इज गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथेनॉल एंड एथेनॉल। देखो मेथेनॉल तो ये बनाता है और एथेनॉल अभी पड़ा है पीछे, एल्डिहाइड, तो इसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप इज देयर, इट मीन्स एल्डिहाइड शो, एस्टल्डिहाइड शो
haloform reaction. Propane 2-ol and pentane 2-ol. Propane 2-ol, the formula is this, pentane 3-ol. तो प्रोपेन 2-ol ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा था पीछे, कीटोन, एसीटोन, बट ये देखो डिफरेंट है. देयर इज नो अल्फा मिथाइल ग्रुप, इट मींस दिस कंपाउंड डज नॉट शो हेलोफॉर्म रिएक्शन, दिस इज शो हेलोफॉर्म रिएक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव हेलोफॉर्म. देखो बहुत सारे मैंने लिखे क्वेश्चन, अब इसमें बताइएगा आप लोग खुद से नोट करना और प्रैक्टिस करना. फर्स्ट यू राइट डाउन दीज एग्जाम्पल एंड डू योर सेल्फ. ओके, अपने आप से करना है. यहाँ पे तो मैंने बता दिया. देखो देयर इज अल्फा मिथाइल तो शो करेगा, तो यहाँ पे नहीं है तो नहीं शो करेगा, यहाँ पर भी नहीं है तो नहीं शो करेगा, यहाँ पे अल्फा मिथाइल है तो शो करेगा, यहाँ पे नहीं है तो नहीं शो करेगा. देयर इज अल्फा मिथाइल तो शो करेगा, देयर इज नो अल्फा मिथाइल तो नहीं शो करेगा, देयर इज नो अल्फा मिथाइल नहीं शो करेगा, नो अल्फा मिथाइल. अब मेथेनॉल जैसे ही कन्वर्ट होता है तो किसमें बनता है, एल्डिहाइड बनाता है ना मेथेनॉल का ऑक्सीडाइज होने पर. ये करेगा क्योंकि ये क्या बनाता है, एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड. तो CH3 ग्रुप इज देयर इज नो CH3 ग्रुप, देयर इज अ CH3 क्योंकि इसका जैसे ही आप ऑक्सीडाइज कराते हो तो ये कीटोन बना देता है, एसीटोन. ये भी करेगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, ये नहीं करेगा. एंड दिस कंपाउंड आल्सो नॉट शो. क्लियर. देखो इसमें ऑक्सीडाइज होकर ये C डबल बॉन्ड OH बनाएगा, यहाँ पे CH2 ग्रुप है. सेम एज, अब देखो इसमें भी है कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. CH2I ये शो कर रहा है क्योंकि मैकेनिज्म में जाकर चेक करना कि ये कंपाउंड बन रहा है, ये भी मैकेनिज्म में बन रहा है. तो मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको ये कंपाउंड शो कहाँ पे हो रहा है. देखो CH2I C डबल बॉन्ड OH और CI3 C डबल बॉन्ड O CH3. देखो यहाँ पे दिखेगा ये मैकेनिज्म में. देखो CHI2 C डबल बॉन्ड OH ये भी दे रहा है, और ये देखो CHI2 C डबल बॉन्ड OH और CI3 C डबल बॉन्ड OH. अब यहाँ पे OH अगर कीटोन होता तो यहाँ CH3 होता. क्लियर. तो सेम, तो ये भी शो करेगा, ये भी कर रहा है, ये भी करेगा, ये नहीं करेगा. अब जहां पर नाइट्रो ग्रुप दिख जाए और साइनाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख जाए तो वो कंपाउंड कभी शो नहीं करेगा, चाहे भले ही इसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप हो चाहे ना हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपको दिख जाए NO2 CN COOH, अगर इस टाइप के कंपाउंड CHO या फिर इस टाइप के कंपाउंड यहां पर अगर आपको दिख रहे हैं तो दिस कंपाउंड डज नॉट शो हेलोफॉर्म रिएक्शन. अब देखो लास्ट टॉपिक है हेलोफॉर्म का. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन. देखो ये कंपाउंड दिख रहा है आपको, इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज ओनली फॉर कॉम्पिटेटिव, नॉट फॉर बोर्ड. तो बोर्ड वाले इसको स्किप कर सकते हैं. तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3. अब देखो दो कीटोनिक ग्रुप के सेंटर वाला कार्बन होता है एसिडिक हाइड्रोजन, जहां से H निकलेगा. देखो एसिडिक हाइड्रोजन, इसका वही मैकेनिज्म है पूरा. आप प्रैक्टिस करना जो पीछे किया है पूरा वही है. तो देखो हाइड्रोफॉर्म बना रहा है. सेम एज इसमें भी सेंटर वाला है तो ये भी शो करेगा, इसमें भी दो कीटोनिक ग्रुप के सेंटर वाला तो शो करेगा. और ये दोनों जब कीटोनिक ग्रुप बनाएंगे, देखो ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो तो सेंटर वाला है तो ये भी देगा, यहाँ भी देगा. देखो C डबल बॉन्ड हो CH2 C डबल बॉन्ड हो तो बीच में CH2 है तो ये भी देगा. यहां पर देखो दो तरफ है मिथॉक्सी ग्रुप OCH3 ग्रुप, तो ये कौन सा इफेक्ट देता है, प्लस एम इफेक्ट. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इसके कारण से ये कंपाउंड जो है अपना हाइड्रोजन इजिली बाहर नहीं निकाल पाएगा क्योंकि ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप. तो ये तो निकल जाएगा तो कहां से शो करेगा. तो ध्यान दो, जहां पे प्लस एम इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिख जाए वो कंपाउंड शो नहीं करेगा. क्लियर. तो इसका प्रैक्टिस करना मैकेनिज्म. और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करिए. यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉल मी और मैसेज मी. क्लियर. तो देख लो यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 है तो इनके बीच वाले में दोनों कीटोनिक ग्रुप, तो बीच वाला CH2 इज अ एसिडिक हाइड्रोजन. सेम एज दिस. इसका भी देखो ऑक्सीडाइज होगा तो ये कीटोनिक ग्रुप बना देगा, NaOH के साथ रिएक्शन होगा तो. क्लियर. तो जैसे ही ये यहां से कीटोनिक ग्रुप बनेगा तो सेंटर वाला CH2 शो. देखो C डबल बॉन्ड हो तो बीच में क्या है CH2, तो C डबल बॉन्ड हो CH2 बीच में है तो ये शो करेगा. बट देयर इज अ प्लस एम इफेक्ट. देखो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर. तो मिथॉक्सी ग्रुप इज अ गुड लिविंग ग्रुप तो ये निकल जाएगा. ठीक है. ओके. क्लियर. तो दिस इज द फुल टॉपिक ऑफ फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.